students, this is Hetal Bhandari from HR Institute of Studies. Today we are going to continue with the same chapter, that is chapter number 9, Algebraic Expressions of Standard 8 Maths NCERT. लास्ट एक्सरसाइज में अपन ने प्रोडक्ट करा था कि प्रोडक्ट कैसे ढूंढते हैं, टर्म्स के प्रोडक्ट कैसे ढूंढते हैं, दैट इज द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द टर्म्स अपन ने लास्ट एक्सरसाइज में किया था. द सेम कंसेप्ट विल रिपीट अगेन इन एक्सरसाइज 9.3. विल कंटिन्यू विद द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लीकेशन. जो भी वेरिएबल्स है, जो भी न्यूमेरिकल्स है, जो भी टर्म्स है, पूरे टर्म्स को एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करना है. एंड द बेसिक रूल फॉर द सेम इज जीरो के साथ अगर कोई भी नंबर मल्टीप्लाई होगा द आंसर विल ऑलवेज बी जीरो. जीरो के साथ कोई भी टर्म, वेरिएबल, न्यूमेरिकल, कुछ भी अगर नंबर कुछ भी अगर मल्टीप्लाई होगा द आंसर विल ऑलवेज बी जीरो. एंड द अदर रूल इज मल्टीप्लीकेशन की टाइम इफ द वेरिएबल इज सेम, like a4 into a square, a to the power 4 into a to the power a square. So दोनों के variables क्या a है? If they have the common variables, then power will be added in case of multiplication. Power क्या हो जाएगा? Add हो जाएगा. अगर multiply करना है of the same variable, then power will be added. Okay. So we'll continue with the same exercise 9.3. Question number first. Carry out the multiplication of the expressions in each of the following pairs. Exercise 9.3. Question number first. 4p q plus r. 4p q plus r. Okay. So 4p multiply by q plus r. अगर प्लस वाला है तो वो हमेशा वेरिएबल में डालने का, बिकॉज ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा, ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा. क्लियर स्टूडेंट्स? 4p कॉमा q प्लस r, कॉमा मतलब मल्टीप्लाई, ये दो टर्म्स के बीच में मल्टीप्लीकेशन करना है. सो 4p मल्टीप्लाई बाय q प्लस r. So 4p into q will be 4pq. 4p into q will be 4pq. Plus will be repeated as it is. Now 4p into r will be 4pr. Clear? 4p into r will be 4pr. Clear students? Continuing with the next question. Question number 2. ab comma a minus b. ab comma a minus b. That is ab multiplied by a minus b. Now ab into a will be a square b, and ab into minus will be repeated as it is. Now ab into b is a एक बार है, b दो बार है, so ab square. ab square. So final answer will be a square b minus ab square. Clear students? जो वेरिएबल जितनी बार रिपीट हो रहा है the power will be added. The same variable is multiplied, the power will always be added. A plus b multiplied by 7a square b square. Okay. So बाहर अगर एक होगा, अंदर दो होंगे, तो बाहर वाला अंदर से ही किया जाएगा, भले वो लेफ्ट कॉर्नर पे है या राइट कॉर्नर पे, डजंट मैटर एक्चुअली. So 7a square b square that is into a is now a square. एक और a मल्टीप्लाई कर रहे, कुछ नहीं होता है, मतलब पावर 1 माना जाता है. Now power will be added, so 2 plus 1 that is 3. तो a cube b square plus now b is multiplied, not a, so 7a square will be as it is. Now b will become cube rather than square. Okay students, got my point? It will be 7a cube b square plus 7a square b cube. Clear students? Go through karo. I'll continue with the next sum. Okay. Fourth question. A square minus 9. A square minus 9 into 4a. अब तुमको इसको ये a square minus 9 मतलब a square minus b square वाली फॉर्मूला करके कर सकते हैं, बट why to do the same अगर अपन को तीसरे कोई चीज से मल्टीप्लाई करना है. सो विल नॉट स्प्लिट इट आउट, अपन स्प्लिट आउट नहीं करेंगे, एज इट इज मल्टीप्लाई करेंगे. नाउ 4
a into a square will become 4a cube. 4a into a square will become 4a cube because this is a power 2 and nothing is mentioned, so it will be power 1. So 2 plus 1 is 3 in case of same variable multiplied. Minus 4a into 9. 4 9s are 36a. This is the final answer. Clear, students? Last but not the least, PQ plus QR plus RP and multiplied by the whole expression will be multiplied by 0. Anything, any number, any variable, any term, if multiplied by 0, the whole thing will result into the answer 0. So any number, variable, expression, term multiplied by 0, the answer will always be 0 without any doubt. Clear, students? Go through the same. I'll continue with the next question, that is complete the table. Okay. Question number 2, complete the table. First expression, second expression and a product. So the product of first and second expression, right, students? Okay, so the first question is A, which will be multiplied by the second expression, that is B plus C plus D. Okay, so A multiplied by B, that is AB. A multiplied by C, that is AC, and A multiplied by D, that is AD. जो बीच में साइन रहेगी वो यही साइन रहेगी जो क्वेश्चन में दी हुई है. The sign will not be changed accordingly. Okay, the sign will not be changed. Okay, the sign will be as it is, which is given in the question, right? Okay, so easy. The multiplication part in algebraic expression is the most easy one. Sorry. X plus y minus 5 multiplied by 5xy. So 5xy into x, तो 5x square y हो जाएगा, बिकॉज सिर्फ x मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब x का पावर बढ़ेगा, बाकी सब एज इट इज सेम रहेगा. क्लियर, स्टूडेंट्स? नाउ प्लस 5xy multiplied by y, so पावर सिर्फ y का बढ़ेगा, 5x will remain as it is, 5xy square, right? And 5x into 5. अब इसके अंदर साइन माइनस की है, so we'll repeat the sign of minus, and 5 5s are 25, xy will remain the same. 5 5s are 25, xy will remain the same. Clear, students? Okay. P 6p square minus 7p plus 5. 6p square minus 7p plus 5. P into 6p square. P into 6p square will be 6p cube. Because p multiply हो रहा है, पावर कुछ नहीं 1 मानेंगे तो पावर ऐड हो जाएगा, राइट? माइनस 7p पावर्स ऐड हो जाएगा प्लस 5p. क्लियर, स्टूडेंट्स? फोर्थ 4p square q square. p square minus q square. 4p square q square multiplied by p square, तो p to the power कितना हो जाएगा? 4, because power will be added. 2 plus 2 4 and q square as it is रहेगा. Similarly, when it comes to q square, so 4p square will remain as it is and q का power क्या हो जाएगा? 4, because 2 plus 2 becomes 4. Clear, students? Okay. A plus b plus c multiplied by a b c. So a b c को जब a से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? a square b c. जब b से करेंगे तो a b square c, एंड जब c से करेंगे तो a b c square. होल स्क्वायर नहीं है, a b एंड c का स्क्वायर. क्लियर, स्टूडेंट्स? क्लियर? अच्छे से उसको गो थ्रू करो. विल कंटिन्यू विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3.
Okay. Find the product a square into 2a22 into 4a26. A square into 2a22 into 4a26. 2 4s are 8. क्लियर? 2 4s, इसमें कोई भी प्लस माइनस है नहीं तो अपन डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर सकते हैं तीनों को एक साथ कर सकते हैं बिकॉज कोई भी प्लस या माइनस की साइन बीच में नहीं है. सो 2 4s are 8 हो गया. नाउ पावर के टर्म्स में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई में सेम वेरिएबल है तो पावर्स विल बी एडेड. इट इज 2 plus 22 plus 26. Powers will be added. So it will become 8a 2 plus 22 24. 24 plus 26 is 50. 24 plus 26 is 50. So 8a to the power 50 is the final answer. Clear students? Power will be added in case of multiplication of same variables. Okay. 2 upon 3 xy multiply by minus 9 upon 10 x square y square. Clear? So cross multi अपन कटिंग कर सकते 3 1s are 3 minus 3s are 2 1s are 2 5s are. Clear? Now x into x, अब ये क्या कर देंगे, -3 upon 5 हो गया. न्यूमेरिक टर्म में तो -3 upon 5 हो गया. Now x into x square is x cube. Y into y square is y cube. So the final answer is -3 upon 5 x cube y cube. -3 upon 5 x cube y. Clear students? Continue with question number 3. -10 upon 3 p q cube multiply by 6 upon 5 p cube cube. So 5 1s are 5 minus 2s are 3 1s are 3 2s are. So वेरिएबल्स के टर्म में क्या आ गया, नीचे 1 आ गया. वेरिएबल्स नहीं, नंबर्स के टर्म में क्या हो गया, नीचे 1 आ गया, ऊपर क्या है -2 into 2 that is -4. p into p cube will be p4. q cube into q is q4. The answer will be -4 p4 q4. p to the power 4 q to the power 4. Clear students? And the last one is the easiest. Question number 4. X into x square into x cube into x to the power 4. Clear? So x will be common. Powers will be added in case of the multiplication of the same variables, right? I'm टेलिंग दिस स्टेटमेंट अगेन एंड अगेन ताकि तुमको ये चीज दिमाग में घुस जाए कि पावर्स ऐड होंगे, मल्टीप्लाई नहीं होंगे. वेरिएबल्स अगर सेम वेरिएबल्स अगर मल्टीप्लाई हो रहे तो पावर्स विल बी एडेड नॉट मल्टीप्लाइड. क्लियर स्टूडेंट्स? सो इसमें कुछ नहीं है, मतलब इसका पावर 1 मानेंगे. 1 plus 2 plus 3 plus 4. क्लियर? इज इक्वल टू x. 1 plus 2 is 3. 3 plus 3 is 6. 6 plus 4 is 10. So the final answer is x to the power 10. Clear? X to the power 10 is the final answer. Clear students? We are completing the third question. Go through karo. Let's continue the next question after this. Okay. Question number 4. Simplify. 3x into brackets that is multiplied by 4x minus 5 plus 3. So the term is 3x into bracket 4x minus 5 plus 3. Okay. Find its value if x is equal to 3. If x is equal to 3. So what we'll do, अपन क्या कर सकते हैं, पहले पूरे टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे, लास्ट में x की वैल्यू 3 लगा देंगे, या फिर जैसे जैसे x से उधर उधर 3 लगा देते हो. 3 into 3 4 into 3, जिधर जिधर x से उधर मैं 3 लिख रही हूँ, राइट? प्लस 3. So 3 3s are 9, 4 3s are 12 minus 5 plus 3.
अकॉर्डिंग टू द बॉड मास ब्रैकेट्स पहले ओपन होता है, मल्टीप्लीकेशन बाद में, और उसके बाद एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन. सो is equal to 9 into 12 minus 5 is 7 plus 3. Now this is multiplication. Multiplication पहले होगा, addition बाद में होगा. 9 7 are 63. 63 plus 3 is equal to 66. Clear students? 63 plus 3 is equal to 66. Same if x is equal to half पूछा, right? So मैं क्या करूँगी? 3 into 1 upon 2 4 into 1 upon 2 minus 5 plus 3, right? So 3 into 1 upon 2 will be 3 upon 2 students. ये 2 कट हो जाएगा, 2 मल्टीप्लीकेशन में कट हो सकता है, प्लस और माइनस के केस में एलसीएम लेना पड़ता है. ये डायरेक्टली कट हो गया तो 2 minus 5 हो गया प्लस 3 इज इक्वल टू 3 upon 2. 2 minus 5 कितना होता है? 2 minus 5 is minus 3 plus 3. 3 3s are 9, but minus 9 upon 2 plus 3. Now LCM हो जाएगा अगर कुछ नहीं है तो. So 2 is the LCM. minus 9 into 2 into 2 plus 6. So the following answer will be minus 9 plus 6, that is minus 3 upon 2. Clear students? minus 3 upon 2. अच्छे से गो थ्रू करो, फिर नेक्स्ट सम कंटिन्यू करती हूँ. The next question, question number B of the same question, question number 4 is similar pattern. So तुमको खुद करना है होमवर्क के अंदर. I'll continue with question number 5, that is the addition and subtraction. Okay. Question number 5th. A. Addition. Okay. So P into P minus Q. जिधर जिधर कॉमा है मुझे क्या लगा देना है? प्लस की साइन लगा देनी है. प्लस Q into Q minus R plus R into R minus P. Right students? So when we multiply, P square हो जाएगा minus PQ plus Q square minus QR plus R square minus RP. Right? So कुछ भी कॉमन है इसके अंदर, कुछ भी कॉमन नहीं है जो एक दूसरे के साथ कट सके, तो दिस इज द फाइनल आंसर. अगर कटिंग होती तो मैं कटिंग करती, बट कटिंग पॉसिबल नहीं है, सो दिस इज द फाइनल आंसर. क्लियर स्टूडेंट्स? बी 2x z minus x minus y प्लस एंड की जगह पे क्या आ जाएगा? प्लस 2y z minus y minus x. क्लियर? So 2x into z is 2xz minus 2x double बार है तो x square minus 2xy plus 2yz minus 2y square minus 2xy. क्लियर? जो भी साइन आएगी साइन रिपीट होगी. क्लियर? ओके. नाउ इसमें कुछ भी रिपीट हो रहा है? यस. मुझे एक चीज दिख रही है 2xy and 2xy, बाकी कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा. So we'll repeat the same. 2xz minus 2x square minus 2xy के बाजू में 2xy ये वाला भी ले आएंगे. That is again minus 2xy plus 2yz minus 2y square. Clear? So 2xz minus जो नहीं हो रहा वो तो as it is रहेगा. minus minus plus 2 plus 2 4, but sign of greater number that is minus. तो 4xy प्लस बाकी का पूरा सेम रहेगा, बिकॉज उनके साथ कोई भी कॉमन टर्म्स नहीं है. लाइक टर्म्स नहीं है. लाइक टर्म्स मतलब जिसके वेरिएबल सेम होते हैं. क्लियर? तो कोई भी लाइक टर्म्स नहीं है तो फिर वो एज इट इज सेम रहेगा. इन दोनों में लाइक टर्म्स थे तो ये बाजू बाजू में लाके एडलेस जो भी था वो अकॉर्डिंगली कर लिया. ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज द फाइनल आंसर. Last 2 questions to complete this exercise.
Question number C. Subtract, that is minus 3L, L minus 4M plus 5N. ओके, फ्रॉम बोला है तो फ्रॉम के बाद वाला पहले लिखते, राइट? फ्रॉम के बाद वाला हमेशा पहले लिखा जाता है. तो फ्रॉम के बाद क्या लिखा है? 4L इंटू ब्रैकेट्स 10N माइनस 3M प्लस 2L. तो इधर माइनस लगा देंगे एंड पहले वाला जो टर्म है वो रिपीट करेंगे इंटू ब्रैकेट्स. हाँ, 3L, L माइनस 4M प्लस 5N. क्लियर? ये क्या है? 5N. क्लियर स्टूडेंट्स? सो अपन क्या करेंगे? सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे. 4 इंटू 10 दैट इज 40 LN माइनस 4 3 12 LM प्लस 4 2 8 L स्क्वायर माइनस 3. अब माइनस के बाद पहले ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद माइनस के बाद वाला ब्रैकेट खोलेंगे. क्लियर? क्योंकि अंदर भी ब्रैकेट है. सो 3L इंटू L विल बी 3L स्क्वायर माइनस 3 4 12 LM प्लस 15 LN. ओके, अब जब ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस की वजह से सब साइन चेंज हो जाएगी. जब भी बाहर माइनस होता है तो साइन चेंज हो जाती है. सो 40 LN माइनस 12 LM प्लस 8L स्क्वायर माइनस 3L स्क्वायर. जो भी साइन है एग्जैक्टली अपोजिट हो जाएगी. ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस. सो एग्जैक्टली चेंज हो जाएगी साइन. क्लियर? ब्रैकेट विल बी क्लोज्ड. ओके, नाउ लाइक टर्म्स विल कम टुगेदर. सो LN वाला कुछ है, हाँ है, इज इक्वल टू 40 LN माइनस 15 LN माइनस 12 LM प्लस 12 LM प्लस 8L स्क्वायर माइनस 3L स्क्वायर. क्लियर? नाउ 40 माइनस 15 इज 25 LN. क्लियर? माइनस प्लस कट हो गया है, एग्जैक्ट 12 है. 8 माइनस 3 इज 5, तो माइनस 5L स्क्वायर. सो आइए तुम उसको ऐसे लिख सकते हो या तुम उसको कैसे लिख सकते हो? इसमें कॉमन कुछ है? हाँ, कॉमन है. 5 एंड L दोनों कॉमन है. सो 5N माइनस L. तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो, तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो, विच एवर यू वॉन्ट. ओके, ओके. D. फ्रॉम के बाद वाला पहले लिखेंगे, दैट इज OC माइनस A प्लस B प्लस C. माइनस लगा देंगे और पूरा वो टर्म साथ में लिखेंगे ब्रैकेट के अंदर. 3A इंटू ब्रैकेट A प्लस B प्लस C माइनस 2B A माइनस B प्लस. क्लियर स्टूडेंट्स? सो ये क्या हो जाएगा? 4C इंटू A दैट इज माइनस 4AC प्लस 4BC प्लस 4C स्क्वायर माइनस 3A इंटू A विल बी 3A स्क्वायर प्लस 3AB प्लस 3AC. नाउ माइनस बाहर है तो सब साइन चेंज हो जाएगी. दैट इज माइनस 2AB प्लस 2B स्क्वायर माइनस 2BC. क्लियर? अगेन माइनस बाहर है, अंदर की साइन वापस पूरी चेंज हो जाएगी, राइट? सो माइनस 4AC प्लस 4BC प्लस 4C स्क्वायर माइनस 3A स्क्वायर माइनस 3AB माइनस 3AC प्लस 2AB माइनस 2B स्क्वायर प्लस 2BC. क्लियर? माइनस 4AC माइनस 3AC प्लस 4BC प्लस 2BC. ठीक है?
प्लस 4c² माइनस 3a² बिकॉज स्क्वायर वाले कुछ भी चेंज नहीं है, माइनस 2b²। उससे पहले मैं ab वाला भी ले आऊंगी साथ में। ac हो गया, bc हो गया, तो मैं ab वाला भी ले आती हूँ, तो स्क्वायर्स वालों को लास्ट में रख दूंगी। माइनस 3ab प्लस 2ab नाउ प्लस 4c² माइनस 3a² माइनस 2b²। क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ माइनस माइनस प्लस, बट साइन ऑफ ग्रेटर नंबर, दैट इज माइनस 7ac प्लस प्लस प्लस, सो प्लस 6bc minus plus minus 3 minus 2 is 1, sign of greater number, that is minus, so minus ab plus this will repeat as it is, so this is the final answer. Clear students? This is the final answer. अकॉर्डिंगली तुमको ब्रैकेट खोलना है। अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस की साइन है तो ब्रैकेट के अंदर की सब साइन चेंज हो जाएगी, तो उस हिसाब से सम करना है। फ्रॉम के बाद वाला पहले लिखना है, माइनस के अंदर एक सब्ट्रैक्ट बोला हो तो फ्रॉम के बाद वाला हमेशा पहले लिखा जाता है। क्लियर? अच्छे से गो थ्रू करो, एक्सरसाइज इधर ही कंप्लीट होती है। Okay, exercise 9.4, question number first. Multiply the binomials. Question number first, multiply the binomials. 2x plus 5 multiply by 4x minus 3. Binomials मतलब the expression which contains two terms. तो दो दो टर्म वाले नंबर्स वेर एक्सप्रेशंस को मल्टीप्लाई करना है। सो इस केस में क्या करना है, पहला जो टर्म होता है 2x को पहले दोनों के साथ करेंगे, देन 5 को दोनों के साथ करेंगे, राइट? सो कैसे करेंगे? 2x इंटू 4x, दैट इज 2 4 जा 8, 8x इंटू x, x², 8x²। नाउ 2x इंटू माइनस 3, सो माइनस 6x plus 5 into 4, that is plus 20x, plus 5 into minus 3, that is minus 15. Clear? So 8x², ये दोनों लाइक टर्म्स है, तो माइनस प्लस माइनस 20 minus 6 is 14, sign of greater number, that is plus, so plus 14x minus 15 is the final answer. क्लियर स्टूडेंट? इजी। पहले अपना एक टर्म होता था, दो टर्म होते थे, एक टर्म को दोनों के साथ मल्टीप्लाई करते थे। अब दो टर्म को अगर दो टर्म के साथ मल्टीप्लाई करना है तो दोनों टर्म को इंडिविजुअली दोनों टर्म के साथ मल्टीप्लाई करना है। एक टर्म को लिया दोनों के साथ किया, दूसरे वाले को लिया दोनों के साथ। क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ 1, 3 and 6 I'll solve, बाकी सब होमवर्क। क्लियर? 2.5L minus 0.5M multiplied by 2.5L plus 0.5M. सो ये दोनों सेम टर्म है, खाली साइन का डिफरेंस है। अपन ने ये वाला फैक्टराइजेशन में पढ़ा, a² माइनस b² इज इक्वल टू a माइनस b, a प्लस b। ये a माइनस b एंड a प्लस b है, तो इसको मैं क्या बोल सकती हूँ? a² माइनस b² बोल सकती हूँ, दैट इज 2.5L होल स्क्वायर माइनस 0.5M होल स्क्वायर। क्लियर? नाउ 2.5L का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? 2.5 इंटू 2.5 इज 6.25, 2.5 इंटू 2 इज 6.25। तो उनको मल्टीप्लीकेशन करना है, अगर नहीं समझ आए तो माइनस 0.5 इंटू 0.5, दैट इज 0.25 M स्क्वायर। दिस इज द फाइनल आंसर। क्लियर? ये क्या है? a माइनस बी, a प्लस बी। फैक्टराइजेशन में अपने बहुत क्लियरली पढ़ा, a² माइनस b² इज इक्वल टू a प्लस बी, a माइनस बी, एंड a² माइनस b, सॉरी, a² माइनस b² इज इक्वल टू a प्लस बी, a माइनस बी। सो मैंने इस चीज को a² माइनस b² कर सकती हूँ, बिकॉज ये a माइनस बी एंड a प्लस बी मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट? सो ये फाइनल आंसर आ गया। क्लियर स्टूडेंट्स? इंपॉर्टेंट मार्क कर दो। Question number 6.
3/4 a square plus 3b square multiplied by 4 into a square minus 2/3. Okay. So 3/4 a square plus 3b square multiplied by, पहले ब्रैकेट ओपन करेंगे, दैट इज 4a square minus 2 4 8b square upon 3. ओके, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, सो 3/4 a square इंटू 4a square माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 3a square 3/4 a square इंटू 8b square 8/3b square, राइट, प्लस 3b square इंटू 4a square माइनस 3b square इंटू 8/3b square. क्लियर? अब ये कट हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन में, तो ऊपर नीचे, राइट, 3/4 और 4 कुछ नहीं तो 1, तो ये 4 कट हो जाएगा. 3 a square इंटू a square क्या हो जाता है, a4 माइनस 4 1 4 2 3 1 3 1 तो ये क्या हो गया, माइनस 2 a square b square माइनस 2 a square b square. क्लियर स्टूडेंट्स? 3 4 12 तो प्लस 12 a square b square. ये वापिस कट होगा, 3 1 बीच में क्या है, माइनस की साइन है, तो ये क्या हो गया 8b4. क्या हो गया 8b4. तो अल्टीमेटली ये दोनों लाइक टर्म्स है, तो लाइक टर्म प्लस माइनस हो सकते हैं, यस हो सकते हैं. 3a4 माइनस प्लस माइनस 12 minus 2 is 10, but sign of written number that is plus a square b square minus 8b4 is the final answer. अगेन स्टूडेंट्स, पहले अपन क्या करेंगे, ये दोनों टर्म के अंदर, ये ब्रैकेट के बाहर है तो उसका ब्रैकेट खोल लेंगे. ये दो अलग अलग मोनोमियल्स हो गए, सॉरी बाइनोमियल्स हो गए. अब ये बाइनोमियल्स को मल्टीप्लाई करेंगे, सो 3/4 a स्क्वायर को अपन ये दोनों टर्म के साथ इंडिविजुअली मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 3b स्क्वायर को दोनों टर्म्स के साथ इंडिविजुअली मल्टीप्लाई करेंगे. जो भी कटिंग पॉसिबल है इन केस ऑफ मल्टीप्लीकेशन. ऐसे तुम नहीं कर सकते क्योंकि बीच में माइनस है, लेकिन मल्टीप्लाई है तो तुम इजीली कर सकते हो. सो वेरेवर कटिंग पॉसिबल कटिंग करेंगे एंड दैट इज लोएस्ट फ्रैक्शन में लेके आएंगे. सॉरी, देन फाइनली जो भी लाइक टर्म्स है उनका प्लस और माइनस करेंगे. अल्टीमेट आंसर विल बी 3a to the power 4 plus 10a square b square minus 8b to the power 4. Clear? This is the final answer. अच्छे से इसको गो थ्रू करो. विल कंटिन्यू विद द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन पूरा का पूरा होमवर्क में जस्ट मल्टीप्लाई द बाइनोमियल्स एज इट इज, जैसा तुमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया है. एंड क्वेश्चन नंबर 3 नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करूंगी. सो गुड बाय एवरीवन, विल एंड दिस लेक्चर हियर एंड विल कंटिन्यू विद द क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज 9.4 इन द नेक्स्ट लेक्चर. टिल देन गुड बाय.